व्यावहारिक तौर पर किस प्रकार से वार्तालाप करते हैं, इस चैप्टर से, इस लेसन से, इस पार्ट से आपको इस बात की एक झलक देखने को मिलेगी। ठीक है ना। ये जो चैप्टर है, ये इसमें दो लोग हैं, टू कैरेक्टर्स आर देयर। फर्स्ट, मिस्टर एडम स्मिथ, who had called Mr. Kailash Satyarthi, who was the winner of Nobel Prize 2014. Nobel Prize winner Mr. Kailash Satyarthi. एडम स्मिथ, उन्होंने कैलाश सत्यार्थी को फोन कॉल किया है और उन दोनों के बीच में कुछ औपचारिक बातें हो रही है। उसका एक छोटा सा खंड जो है उसको आपके सामने रखा गया है। इसमें आप देखेंगे कि आप जब फॉर्मली मतलब औपचारिक रूप से किसी से बात करते हैं, आधिकारिक रूप से किसी से बात करते हैं, तो आपकी बात करने की आपकी भाषा क्या होनी चाहिए। ठीक है ना। और इसमें कैलाश सत्यार्थी जी ने जो नोबेल प्राइज जीता था, नोबेल पीस प्राइज कहा जाता है उसे, शांति का नोबेल प्राइज का उन्होंने जीता था, तो उसके बारे में उनके साथ चर्चा हो रही है, उनसे कुछ उनके अनुभव वो शेयर कर रहे हैं। इट्स एन टेलीफोन इंटरव्यू विद कैलाश सत्यार्थी। ये क्या है? एक टेलीफोन इंटरव्यू है। मतलब ये जो इंटरव्यू लिया गया है, ये जो साक्षात्कार लिया गया है, ये किसके किस माध्यम से लिया गया है? ये टेलीफोन। टेलीफोन के माध्यम से लिया गया है। किनके द्वारा लिया गया है? हु इज द इंटरव्यूअर हियर? देखिए यहाँ पे, हाँ, जिसका इंटरव्यू लिया जाता है वह इंटरव्यू ही कहलाता है, और जो इंटरव्यू लेता है वो इंटरव्यूअर कहलाता है। ठीक है ना। हाँ सर, इंटरव्यू यानी इंटरव्यूई, ये कौन है? जिसका इंटरव्यू लिया जाए, हाँ और जो इंटरव्यू लेता है उसे इंटरव्यूअर कहा जाता है। हाँ ठीक है ना। जी सर। तो यहाँ पर बताया जा रहा है टेलीफोन इंटरव्यू विद कैलाश सत्यार्थी फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ द 2014 नोबेल प्राइज 10 अक्टूबर 2014। आप एक एक प्रोनाउंसिएशन को उंगली रखकर, मैं जिस शब्द को बोल रहा हूँ उस शब्द में उंगली रखिए और उसके प्रोनाउंसिएशन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है ना। टेलीफोन इंटरव्यू विथ कैलाश सत्यार्थी फॉलोइंग द अनाउंसमेंट of the 2014 Nobel Prize 10th October 2014. The interviewer is Adam Smith, Chief Scientific Officer of Nobel Media. मीडिया। कैलाश सत्यार्थी, फोन आया, हेलो एडम स्मिथ, हेलो मिस्टर सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी स्पीकिंग, हेलो एडम स्मिथ, हेलो, my name is Adam Smith, calling from the Nobel Prize website in Stockholm. Congratulations on the award of the Nobel Prize. Kailash Satyarthi, thank you so much. Thank you very very much. You have given great honor and the, अब यहाँ पे डॉट डॉट है, अनक्लियर है, मतलब उनके बीच में जो बात समझ में नहीं आई क्योंकि फोन है, हो सकता है कुछ क्लियरेंस ना रहा हो तो आवाज समझ में ना आ पाई। And the hundreds of millions of children in the world who are deprived of their childhood and health and education and fundamental right to freedom. It is a great moment for all those children, and thank you very much for that. Adam Smith, well, thank you. Kailash Satyarthi. It is also a great honor for every Indian citizen, and I am really, really thankful to all of you. Adam Smith, that's very kind of you. Thank you. What message do you hope that the prize award will deliver to the world? Kailash Satyarthi. Well, I am quite hopeful and rather sure
that this will help in giving bigger visibility and attention to the cause of children who are most neglected and most deprived. This will also inspire individuals, activists, governments, business houses, corporate to work, corporate to work hand in hand to fight this out. And I am quite hopeful about it that the recognition of this issue will help in mobilizing bigger support for the cause. And Smith, marvelous. This will focus a lot of attention on your work. How can people around the world help you with your mission? Kailash Satyarthi. First of all, everyone must acknowledge and feel that child slavery still exists in the world in its ugliest face and form. This is an evil, which is crime against humanity, which is intolerable, which is unacceptable, and which must go. That sense of recognition must be developed first of all. And secondly, there is a need of higher amounts of political will. There is a need of higher amount of corporate engagement and the engagement of the people towards it. So everybody has a responsibility to save and protect the children on this planet. Adam Smith, thank you. And I suppose there is inside child slavery week coming up in November, so everyone can get. Kailash Satyarthi, of course. Yes, we are going to organize in child slavery week from 19th November to 25th November. And that would be an annual event we would be organizing every year on different aspects of child slavery. And this year, we are demanding to the information community that the abolition of child slavery must be incorporated into the post-millennium development goal or the sustainable development goal. So, that would be the emphasis of this year in Child Slavery Week. Adam Smith, thank you very much indeed for speaking to us. And again, our congratulations on the award of the Nobel Prize. Kailash Satyarthi, thank you once again on behalf of all my organizations whom I work with, all the activists and all my fellow Indians. Adam Smith, thank you. Kailash Satyarthi, bye bye. ये एक छोटा सा जो वार्तालाप एडम स्मिथ और कैलाश सत्यार्थी के बीच में हुआ था, उसका एक खंड आपके सामने में रखा गया है। इसमें किस प्रकार की बातें हो रही हैं, ये हम और आप मिलकर यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे। What is this? It is an telephone interview. With whom? With कैलाश सत्यार्थी। ये एक टेलीफोन के माध्यम से लिया गया इंटरव्यू है कैलाश सत्यार्थी के साथ, विथ कैलाश सत्यार्थी। फॉलोइंग द अनाउंसमेंट मतलब एक अनाउंसमेंट हुआ है, एक उद्घोषणा हुई है, एक घोषणा हुई है। अनाउंसमेंट का मतलब क्या है? एक घोषणा, अ फॉर्मल पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट अ फैक्ट, ऑकरेंस और इंटेंशन। ये एक फॉर्मल अनाउंसमेंट का मतलब है फॉर्मल पब्लिक स्टेटमेंट। जब आप औपचारिक रूप से, सार्वजनिक रूप से कोई वक्तव्य रखते हैं तो उसे घोषणा कही जाती है, अनाउंसमेंट कहा जाता है। और ये क्या है? एक नाउन है, ठीक है ना? यस। फॉलोइंग द अनाउंसमेंट मतलब क्या है? फॉलोइंग द अनाउंसमेंट मतलब एक घोषणा हुई है, उसके बाद मतलब उस घोषणा को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे। और अनाउंसमेंट कब हुई है? अनाउंसमेंट ऑफ द नोबेल पीस प्राइज। किस चीज की अनाउंसमेंट हुई है? नोबेल 2014 के नोबेल पीस प्राइज, नोबेल का शांति पुरस्कार कब हुआ है? यस 10 अक्टूबर 2014, ठीक है ना? द इंटरव्यूअर इज एडम स्मिथ। इंटरव्यू लेने वाला कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, ठीक है ना?
अटेम ये अटेम कौन है? अटेम देखिए यहाँ पे कॉमा के साथ में उसके बारे में बताया गया है। एडम स्मिथ के बाद तुरंत एक कॉमा लगा है, मतलब अब बताया जा रहा है कि वो एडम स्मिथ कौन है। चीफ साइंटिफिक ऑफिसर ऑफ नोबेल मीडिया, ये जो संस्था है, नोबेल मीडिया। एक जो संस्था है नोबेल प्राइज बांटने वाली, उसकी जो नोबेल मीडिया नाम की जो का जो डिपार्टमेंट है, उसका वो क्या है, चीफ साइंटिफिक ऑफिसर है। ठीक है ना। अब फोन की घंटी बजी, कैलाश सत्यार्थी जी ने फोन उठाया। आप फोन उठाते साथ सबसे पहला शब्द क्या बोलते हैं? हेलो। हेलो हेलो। ठीक, कैलाश सत्यार्थी जी ने कहा हेलो। हेलो मिस्टर सत्यार्थी। एडम स्मिथ जी ने उधर से क्या रिप्लाई किया? हेलो मिस्टर सत्यार्थी। स्पीकिंग हेलो। इधर से कैलाश सत्यार्थी क्या बोलते हैं? स्पीकिंग हेलो। मतलब एडम स्मिथ ने कंफर्म करना चाहा, भाई अभी तो कैलाश सत्यार्थी जी ने केवल हेलो कहा था। ठीक है ना। एडम स्मिथ जी ने क्या किया? हेलो मिस्टर सत्यार्थी। मतलब वो कंफर्म करना चाह रहे थे कि जो फोन के सामने में है वो मिस्टर सत्यार्थी ही है है या और कोई या है? कोई और है। तो उन्होंने बोला हेलो मिस्टर सत्यार्थी, एक क्वेश्चन मार के उसके सामने में देखो तुम। मतलब पूछने का तरीका क्या था? हेलो मिस्टर सत्यार्थी, मिस्टर सत्यार्थी, मतलब सामने वाला जो है वो मिस्टर सत्यार्थी ही है। तो सामने से आवाज क्या आई? स्पीकिंग। आप स्पीकिंग बोल देते हैं, मतलब हाँ मैं कैलाश सत्यार्थी ही हूँ, और उसके बाद फिर कहा हेलो। हाँ बोलिए। हाँ मैं कैलाश सत्यार्थी हूँ, स्पीकिंग वही है। हाँ मैं ही बोल रहा हूँ, बोलते ना बोल रहा हूँ। मैं तुमको फोन किया, कौन? प्रताप। मैंने क्या किया? हेलो प्रताप। देखिए अगर जानता हूं कि प्रताप ही है तो हाँ प्रताप, ये मेरा बात होगा। लेकिन मुझे शंका है कि सामने में प्रताप है कि नहीं, तो मेरा भाव कैसा होगा? हेलो प्रताप। तो तरफ से जवाब आवाज क्या आएगा? अगर प्रताप ही है तो हाँ बोल रहा हूँ, होगा ना। तो वही है स्पीकिंग, बोल रहा हूँ। ठीक है ना। और अगर नहीं हो गए तो नो नो, आई एम जो भी हो दूसरा, नहीं मैं दूसरा कोई बोल रहा हूँ, अभी प्रताप नहीं है। ये बात आएगी सामने से। और अगर बोल रहा है तो हाँ बोल रहा हूँ, बोलिए हेलो, बोल रहा हूँ। ठीक है ना। तो यही चीज हुआ। एडम स्मिथ, हेलो माय नेम इज एडम स्मिथ। अब क्या किया? सामने वाले ने बताया, हाँ हेलो मैं एडम स्मिथ, मेरा नाम एडम स्मिथ है, कॉलिंग फ्रॉम नोबेल प्राइज वेबसाइट इन स्टॉकहोम। मैं नोबेल प्राइज वेबसाइट जो कि स्टॉकहोम में है वहां से बोल रहा हूं, कॉलिंग। यहाँ पे देखो, अब तुम लोग भी बार बार पूछते हो ना ये जेरन क्या होता है। कॉलिंग फ्रॉम द नोबेल प्राइज, यहां से बोल रहा हूं। यहाँ पे जब जेरन लगता है तो किसी भी प्रकार के किसी भी हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती। कहाँ है सर कॉलिंग? माय नेम इज एडम स्मिथ फ्रॉम नोबेल प्राइज वेबसाइट इन स्टॉकहोम। अब वहां पे आईएनजी फॉर्म लगा है तो तुम इज वाज वर खोजोगे, और वो है नहीं तो वो क्या है? मतलब अगर आईएनजी फॉर्म के साथ कोई वर्ब आया है और उसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब तुम्हें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो क्या है? वो जेरंड है। ठीक है ना। मतलब वो जो क्रिया है वह हो रही है, मतलब प्लेइंग। प्ले का मतलब खेलना, और प्लेइंग का मतलब खेल रहा है, खेलना। चाहे उसके सामने इज लगा हो, आर लगा हो, वर लगा हो, वाज लगा हो, कोई जरूरी नहीं है। या ना लगा। अगर नहीं लगा है तो उसका मतलब वो केवल वो काम हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? माय नेम इज एडम स्मिथ कॉलिंग फ्रॉम नोबेल प्राइज वेबसाइट इन स्टॉकहोम। मैं नोबेल प्राइज वेबसाइट जो कि स्टॉकहोम में है वहां से बोल रहा हूं, कॉलिंग फ्रॉम, बोल रहा हूं वहां से। ठीक है ना। आई बात समझ में? अब क्या बोलते हैं उसके बाद वो? कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऑन द वर्ड ऑफ द, आई दी। कॉन्ग्रेचुलेशन क्या है? एक नाउन है, और कॉन्ग्रेचुलेशन एक प्लूरल नाउन है।
जब आप किसी को बधाई देते हैं इसका मतलब है बधाई हो, ठीक है ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस किस चीज में? ऑन द अवार्ड ऑफ नोबेल प्राइज। किस चीज की बधाई है? बताया जा रहा है ऑन द अवार्ड ऑफ प्राइज। ऑन द अवार्ड ऑफ नोबेल प्राइज। प्राइज। नोबेल प्राइज के लिए आपको बधाई दी जा रही है, बधाई। ठीक है ना। बधाई हो किसके लिए? सर हाँ, सर इसमें तो कोई भी नाउन हेल्पिंग वर्ब है, तो ये कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन वर्ड द अवार्ड। देखो यहाँ पे क्या हो, बधाई हो, ये इसका अर्थ समझोगे समझ में आ जाएगा। बधाई हो नोबेल प्राइज पाने ये तो के लिए। क्रिया बधाई हो नोबेल प्राइज पाने के लिए। ऑन द अवार्ड पाने के लिए। आपको नोबेल प्राइज पाने के लिए बधाई हो। मतलब आपने बधाई हुआ, बधाई हो बोला, बधाई उसके दिया। साथ किस चीज के लिए? ऑन द, हाँ, बता दिया कि इसके लिए आपको मैं बधाई दे रहा हूँ, ठीक है ना। कैलाश सत्यार्थी बोलते हैं थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। यू हैव गिवन द ग्रेट ऑनर, यू हैव गिवन द ग्रेट ऑनर। क्या मतलब है इसका बताओ? यू हैव गिवन द ग्रेट ऑनर। ग्रेट। तुम मिल्क आप, ग्रेट। यू का मतलब आप, तुम आप, तुम प्राप्त, आप, तुम हाँ, महान ऑनर बनने तुम महान ऑनर का पद पात्र यानी कि प्राप्त कर चुके हो। चुके हो कहा नहीं दिया, यू हैव गिवन, जीवन आपने दिया है, आपने दिया है। तो द यहाँ पे ग्रेट खड़ा ऑनर मतलब आपने बहुत बड़ा सम्मान दिया है। दिया है, खाली दिया होता तो वो 5 सिंपल हो जाता, दिया के साथ है भी आ चुका है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? वो पास्ट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ठीक है ना। यू हैव गिवन द ग्रेट ऑनर, आपने बहुत बड़ा सम्मान दिया है। एंड द, अब उसके बाद वो कुछ बोलना चाहते थे, वो बात साफ नहीं हो पाई, अनक्लियर लिखा हुआ है ना, मतलब आवाज समझ में नहीं आई। To hundreds of millions of children in the world who are deprived of their childhood and health and education and fundamental right to freedom। मतलब वो बता रहे हो, अब इससे समझ में आता है कि उन्होंने पहले क्या बोला, आपने बहुत बड़ा सम्मान दिया है, एंड द क्लियर नहीं था, लेकिन वो बताना चाह रहे हैं कि किन्हें दिया है ये बड़ा सम्मान? मुझे दिया है, प्लस टू हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन, हजारों लाखों उन बच्चों को, इन द वर्ल्ड, विश्व के उन बच्चों को, किन बच्चों को? हु आर डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड का मतलब क्या है? छीन लेना। डिप्राइव मतलब छीन लेना, वंचित। अब देखो यहाँ पर देखो डिप्राइव के दो गुण हैं, एक तो वो क्या है, एक एडजेक्टिव है और एक पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का सेकंड या थर्ड फॉर्म हो सकता है, वो दो चीजें हो सकती हैं। अब ये तय करना है कि वो एडजेक्टिव है कि वो वर्ब है। तो हु आर डिप्राइव्ड, तो यहां पर उसका मतलब वंचित है, तो वंचित, अब ये बात क्या हो गई, वो कैसा वंचित है? वो क्रिया वाला वंचित, वहां पे वंचित किया नहीं जा रहा है, बात को समझिएगा।
यहाँ पर वंचित किया नहीं जा रहा है। यहाँ पे वंचित मतलब उन बच्चों की विशेषता बताई जा रही है जो वंचित हैं, मतलब ये एक विशेषता बन गई। ये जो डिप्राइव वर्ड है, यहाँ पे किसी चीज करने का भाव नहीं आ रहा है कि किसी को वंचित किया नहीं जा रहा है या कोई वंचित हो नहीं रहा है। यहाँ पे उसे जो चाइल्ड बताया जा रहा है कि वो ऐसा है। ऐसे बच्चे जो अपने बचपन से किससे वंचित है, डिप्राइव्ड ऑफ देयर चाइल्डहुड, अपने बचपन से वंचित है, हेल्थ अपने स्वास्थ्य से वंचित है, एजुकेशन अपनी शिक्षा से वंचित है, एंड फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम। और अपने फंडामेंटल राइट क्या होता है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट क्या है? मौलिक अधिकार। यस सर। तुम्हारे जो मूलभूत अधिकार है, कितने मूलभूत अधिकार है तुम्हारे पास? है। हाँ, तो वो उन मूलभूत अधिकारों में से जो एक मूलभूत अधिकार है स्वतंत्रता, क्या बोले? फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम। यस। भाई बच्चों को संपत्ति के अधिकार की आवश्यकता नहीं है, जीवन के अधिकार की उतनी जरूरत, लेकिन उनको जो मूलभूत अधिकार उनके और मूलभूत है, जो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए बच्चों को, उनसे वह बच्चे क्या है? वंचित है। मतलब वो वंचित है, उन्हें वंचित किया नहीं जा रहा है। मतलब यहाँ पर वंचित होना उनकी क्या है? विशेषता है। इसीलिए डिप्राइव्ड क्या है? एक एडजेक्टिव है। ठीक है ना? मतलब ये बता रहे हैं कि हजारों लाखों ऐसे बच्चे हैं जो कि अपने बचपन से, अपने स्वास्थ्य से, अपनी शिक्षा से, अपने स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से क्या है? वंचित है। इन प्रकार के बच्चों को भी आपने क्या दिया है? मुझे नोबेल प्राइज देकर वंचित है, उन्हें बहुत बड़ा सम्मान दिया है। ठीक है ना? ये सर, It is a great moment for all those children. एक बार बोलिए ना सर जी। हाँ, एक बार फिर उसे समझाइए ना। समझ। चलिए अब इसको एक लाइन से लेते हैं, पूरा ये वाला लाइन को कवर करते हैं। यस। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने वाली लाइन, यहाँ से यहाँ तक पूरा सब कवर करते हैं। ठीक है ना? You have given the great honor and the, वहां पे अनक्लियर हो गया, लेकिन वहां पे होगा क्या? To me great honor and this honor is for me and, मतलब उसके बीच में जो अनक्लियर लिखा है ना, उसमें क्या होगा बता रहा हूं। For me and to, मुझे, मतलब ये जो महान सम्मान है ये आपने किसे दिया है? पहला तो मुझे, ठीक है ना? और 200 of millions of children, हजारों लाखों ऐसे बच्चे इस दुनिया में, who are, जो क्या है? Deprived of childhood, education and fundamental right to freedom, मतलब मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अपने बचपन से जो वंचित हैं, इन प्रकार के बच्चों को, जो कि दुनिया में हजारों और लाखों की संख्या में मौजूद है, आपने इन्हें क्या किया? मुझे और मेरे साथ साथ इन बच्चों को क्या दिया है? बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इन बच्चों को भी, हाँ, इन बच्चों को भी बोल सकते हो तुम। अब वो चूंकि अनक्लियर कर दिया तो हम वहां पे ये मान सकते हैं। इट इज अ ग्रेट मूवमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन। यह एक बहुत बड़ा पल है, मोमेंट, पल है, क्षण है। किनके लिए? फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन, उन सभी बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए नहीं, उन सभी बच्चों के लिए। यहाँ पे दोस्त क्या है? एक प्रोनाउन है।
तो यहाँ पे दोस्त कौन है? उस प्रोनाउन का नाउन कौन है? दोस्त चिल्ड्रंस। कौन से चिल्ड्रंस? फिर वही who are deprived of their childhood, health, education and fundamental right to freedom. उन सभी बच्चों के लिए यह बहुत बड़ा क्षण है। And thank you very much for that. और फिर उसके बाद आखिरी में क्या बोलते हैं? और इन सब चीजों के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। ठीक, एडम स्मिथ इसके रिप्लाई में क्या बोलते हैं? वेल थैंक यू। वेल का मतलब क्या है? हम जब भी कोई बात शुरू करते हैं, हाँ हाँ अच्छी बात, वेल मतलब बहुत अच्छा। वेल का क्या मतलब है? बहुत अच्छा। अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। जैसे मैं तुमको बोला, Yes. अरे बहुत बढ़िया बोले हो, अच्छा सर ठीक, धन्यवाद, ऐसे ही बोलोगे ना। मैंने तुमसे कहा कि हाँ हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम क्या बोलोगे? हाँ अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। Yes. तो वही वेल, वेल सर थैंक यू, तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। आपने जो बोला वो बात बहुत अच्छी थी, आपको मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। Yes. लास्ट सत्यार्थी अब फिर बोलते हैं, इट इज ऑल्सो अ ग्रेट ऑनर फॉर एवरी इंडियन सिटीजन। और ये जो है इट इज ऑल्सो अ ग्रेट ऑनर, और यह किनके लिए और बहुत बड़ा सम्मान है? फॉर एवरी इंडियन सिटीजन, सभी भारतीय नागरिकों के लिए भी है। क्या है? इट इज ऑल्सो भी, सिटीजन के सभी लिए। भारतीय नागरिकों के लिए भी, फॉर एवरी इंडियन सिटीजन ऑल्सो भी, इट इज यह ग्रेट ऑनर, बहुत बड़ा सम्मान, इट इज है, ठीक है ना? फॉर एवरी इंडियन सिटीजन, सभी भारतीय नागरिकों, फॉर के लिए, ऑल्सो भी, इट यह, अ ग्रेट ऑनर बहुत बड़ा सम्मान, इज है भारतीय नागरिकों के लिए ये बहुत बड़ा सम्मान है। के लिए भी, इट इज ऑल्सो के लिए भी यह एक बहुत बड़ा सम्मान है। एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल ऑल ऑफ यू, और मैं रियली वास्तव में, और फिर से दबाव देके बोलते हैं वास्तव में, थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, आप सभी के लिए मैं धन्यवाद प्रदान करता हूँ। मैं आप सभी के लिए धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ, मैं आप सभी से थैंकफुल हूँ, मैं कृतज्ञ अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, आप सभी के लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, ठीक है ना? सर थैंकफुल मतलब आभारी हो। हाँ वही तो, आपके लिए आभार तक रखता हूँ मैं। थैंकफुल टू यू, टू ऑल ऑफ यू बोल रहे हैं, मतलब जितने लोगों ने मुझे इस नोबेल प्राइज के पात्र माना। Yes. टू ऑल ऑफ यू, कौन? वह सभी लोग जिन्होंने मुझे इस अवार्ड के, इस प्रशंसा के लायक माना। एडम स्मिथ, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। बोलते ना, अरे आप बहुत बढ़िया है, बहुत भले हैं, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, तो हम बोलते हैं दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, आप बड़ा ही सम्मान, मतलब बड़े ही विनम्र दिल के व्यक्ति हैं, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ऐसी बात कही। What message do you hope that the prize award will deliver to that world? अब वो अपना प्रश्न रखते हैं, क्योंकि वो इंटरव्यूअर है, उनको तो प्रश्न पूछना है। तो अब उन्होंने प्रश्न पूछा, What message do you hope that the prize award will deliver to the world? What message do you hope? क्या संदेश आप सोचते हैं देना चाहेंगे? That the prize award, ये जो प्राइज का अवार्ड है, ये जो आपको सम्मान, मतलब या जो आपको इनाम मिला है, will deliver to the world, ये पूरी दुनिया को क्या संदेश प्रदान करना चाहता है? डिलीवर, डिलीवर का मतलब क्या है? प्रदान करना, प्रदान करना। क्या सोचते हैं आप, ये क्या प्रदान करना चाहता है? क्या संदेश या दुनिया को देना चाहता है, प्रदान करना चाहता है? कैलाश सत्यार्थी जी बोलते हैं,
वेल, अच्छी बात। आई एम क्वाइट होपफुल। क्वाइट, यहाँ पे क्वाइट का मतलब चुप रहना नहीं है। क्वाइट होपफुल मतलब मैं बहुत ही ज्यादा संतोषप्रद रूप से, बहुत ही ज्यादा आशान्वित। होपफुल होना मतलब आशान्वित होना, आशा रखना। आई एम क्वाइट होपफुल। यहाँ पे क्वाइट का मतलब, यहाँ पे शब्द छोटा है। क्वाइट का मतलब चुप, कम होता है, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा है। यहाँ पे क्वाइट का मतलब हो रहा है मैं बड़ा ही आशान्वित हूँ। एंड रेदर श्योर, रेदर बल्कि, श्योर हूँ, बिल्कुल इस बात के लिए निश्चित हूँ। आई एम क्वाइट होपफुल, पूरा आशान्वित हूँ। और जहां तक कहा जाए बल्कि पूरा मैं निश्चित भी हूँ किस चीज के लिए, कि दैट दिस विल हेल्प इन गिविंग बिगर विजिबिलिटी एंड अटेंशन टू द कॉज ऑफ चिल्ड्रन। किस चीज के लिए आशान्वित हूँ, कि दिस विल हेल्प इन गिविंग बिगर विजिबिलिटी। दिस विल हेल्प इन, ये जो सम्मान मुझे प्राप्त हुआ, ये जो अवार्ड मुझे प्राप्त हुआ है, दिस विल, दिस का मतलब वो सम्मान, विल करेगा, क्या करेगा, मदद करेगा, हेल्प, दिस विल हेल्प, वह मदद करेगा किस चीज में, इन गिविंग बिगर विजिबिलिटी, किस चीज में, बहुत बड़ा ध्यान देने में, बिगर विजिबिलिटी एंड अटेंशन मतलब लोगों का जो संपूर्ण ध्यान है उस चीज को आकर्षित करने में यह मदद करेगा, और अटेंशन, उनका जो ध्यान प्राप्त करने में, टू द कॉज ऑफ चिल्ड्रन, किस चीज के लिए, किस चीज में ध्यान देने के लिए एक बहुत मदद करेगा, टू द कॉज ऑफ चिल्ड्रन, उन बच्चों के कारण के लिए। किन बच्चों के, हु आर मोस्ट नेग्लेक्टेड, मोस्ट डिप्राइव्ड, ऐसे बच्चों के तरफ ध्यान देने में बहुत मदद करेगा जो बहुत ही ज्यादा नेग्लेक्टेड मतलब नजरअंदाज, जिन्हें पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया है, उपेक्षित है, जिनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ठीक है ना, उपेक्षित एंड डिप्राइव्ड, और जो वंचित है। यहाँ पे मोस्ट डिप्राइव्ड, ये मोस्ट डिप्राइव्ड देखो किसके साथ आया, डिप्राइव्ड मोस्ट के साथ। मोस्ट क्या है, डिग्री, डिग्री है, और डिग्री किसके साथ लगती है, मोस्ट डिप्राइव्ड, डिग्री किसके साथ लगती है, मोस्ट के साथ, एडजेक्टिव के साथ, हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव के वर्ब के साथ साथ लगती है। डिग्री है सर, वर्ब के साथ, वर्ब के साथ, वर्ब के साथ, डिग्री किसके साथ लगती है, के साथ लगती है, हाँ एडजेक्टिव के साथ लगती है मेरे भाई। एडजेक्टिव के साथ। तो ये Yes, बता sir, रहे हैं yes, कि यहाँ पे डिप्राइव्ड क्या है, ये हाँ, वर्ब sir. नहीं है, ये एक एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, मोस्ट डिप्राइव्ड बहुत ही ज्यादा वंचित, एडजेक्टिव है। एंड मोस्ट नेग्लेक्टेड बहुत ही ज्यादा उपेक्षित। तो ये क्या चीज में मदद करेगा, दिस विल हेल्प इन, ऐसे बहुत ही ज्यादा वंचित और बहुत ही ज्यादा उपेक्षित बच्चों के तरफ ध्यान आकर्षित करने पर यह हमारा बहुत ज्यादा मदद करेगा। बिगर विजिबिलिटी, बहुत बड़ा प्रदर्शन, बहुत ज्यादा दिखेगा हमको, अब लोगों को। अब दिस विल ऑल्सो इंस्पायर, और ये क्या करेगा, दिस विल ऑल्सो इंस्पायर, यह लोगों को क्या करेगा, इंस्पायर का मतलब प्रेरित भी करेगा। क्या इंस्पायर एक वर्ब है, ठीक है ना, यस सर, क्या करेगा, दिस विल ऑल्सो इंस्पायर, यह लोगों को प्रेरित वर्ब करेगा। है। किन किन लोगों को Yes, प्रेरित sir. करेगा, इंस्पायर इंडिविजुअल्स, हर व्यक्ति को, हर एकल व्यक्ति को। एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट मतलब जो कार्यकर्ता होते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, हाँ, उनको, गवर्नमेंट, सरकारों को। एक्टिविटीज, यस सर, कार्यकर्ता। इंडिविजुअल, हर व्यक्ति को। बिजनेस एक्टिविस्ट, हाउस, जो कि कार्यकर्ता होते हैं, अलग अलग प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं, एनजीओज होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, दे आर ऑल कॉल्ड एक्टिविस्ट्स, जो किसी काम के लिए अपने आप को लगा दिए रहते हैं। गवर्नमेंट्स, सारी सरकारों को। बिजनेस हाउसेस, व्यापारी वर्गों को। कॉर्पोरेट टू वर्क, कॉर्पोरेट्स को,
मतलब जो कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, इन सभी से जुड़े हुए लोगों को क्या करेगा ये? ऑल्सो इंस्पायर, उन्हें भी यह प्रेरित करेगा किस चीज के लिए? टू वर्क हैंड इन हैंड टू फाइट दिस आउट, कि सब एक दूसरे से हाथ मिलाकर इस बीमारी से लड़े, इस जो समस्या है उससे लड़े। फाइट दिस आउट, फाइट दिस आउट, दिस मतलब क्या? किस चीज से फाइट करना है? उन मोस्ट नेग्लेक्टेड एंड मोस्ट डिप्राइव्ड बच्चों की समस्याओं से दूर करने के लिए जो लड़ाई हमको लड़नी है, उस लड़ाई के में इंडिविजुअल एक्टिविस्ट, गवर्नमेंट, बिजनेस हाउसेस, कॉर्पोरेट सेक्टर्स, ये सब हैंड इन हैंड, हाथ से हाथ मिलाकर, वर्क हैंड इन हैंड, हाथ से हाथ मिलाकर इससे लड़ने पर काम करेंगे। ठीक है ना? एंड आई एम क्वाइट होपफुल अबाउट इट, और मैं इस चीज के प्रति पूरी तरीके से आशान्वित हूँ। रिकॉग्निशन ऑफ दिस इशू, कि इस ये जो मुद्दा है, रिकॉग्निशन, उसकी पहचान, भाई बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आप छोटे से तरफ आप देखते होगे, टीवी पिक्चर सब चीज में देखते होगे, अपने आसपास में देखते होगे कि आज बहुत से ऐसे बच्चे, हम तो गांव में रहते हैं तो उतना समझ में नहीं आता है, शहरों में जाके देखिए कि छोटे छोटे बच्चों के साथ कितना ज्यादा जाति हो रहा है। भाई उनको किडनैप कर लिया जा रहा है, उनसे भीख मंगवाया जा रहा है, होटलों में काम करवाया जा रहा है, पढ़ने के समय में उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, कुछ के तो माँ बाप ही उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नेशनल और क्या इंटरनेशनल इशू है। ये केवल हमारे देश में नहीं हो रहा है, ये पूरी दुनिया में ये हो रहा है। तो क्या बोल रहे हैं? दैट द रिकॉग्निशन ऑफ दिस इशू, इस जो मुद्दे की पहचान है, पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि इस मुद्दे की जो पहचान है, विल हेल्प इन मोबिलाइजिंग बिगर सपोर्ट फॉर द कॉज, वो बहुत मदद करेगा किस चीज के लिए? इन मोबिलाइजिंग बिगर सपोर्ट, बहुत बड़ा सहायता प्रदान करने के लिए, इस कारण के लिए, इस मुद्दे के प्रति बहुत समर्थन प्रदान करने के लिए, सपोर्ट प्रदान करने के लिए यह जो प्राइज है ये बिल्कुल मदद करेगा। ठीक है ना? एडम स्मिथ एकदम खुश हो जाते हैं, इसीलिए वो क्या बोलते हैं? मार्वेलस, बहुत बढ़िया सर, बहुत बड़ी बात कही आपने। दिस विल फोकस अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑन योर वर्क, और ये जो है दिस विल फोकस, ये आपकी तरफ बिंदु, मतलब फोकस का मतलब क्या बताऊं आपको मैं, ध्यान आकर्षित कराएगा। दिस विल फोकस अ लॉट ऑफ अटेंशन, बहुत से लोगों का जो ध्यान है आपकी तरफ आकर्षित करवाएगा ऑन योर वर्क, और आप जो काम कर रहे हैं उसकी तरफ सबका क्या होगा? ध्यान जाएगा, फोकस आएगा, एक रोशनी पड़ेगी कि आप जो काम कर रहे हैं उस पर सभी लोगों का ध्यान अब इस अवार्ड के माध्यम से अब आपके ऊपर निश्चित होगा। भाई बहुत बड़ा अवार्ड मिला है, नोबेल प्राइज, मतलब दुनिया में एक आदमी को मिलता है। हाउ कैन पीपल अराउंड द वर्ल्ड हेल्प यू विथ योर मिशन? अब फिर एक प्रश्न पूछते हैं हाउ कैन पीपल अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया में जो लोग हैं वह कैसे हेल्प यू विथ योर मिशन, आपके इस मिशन में, आपके इस लक्ष्य में आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? भाई ठीक है, आपने एक मुद्दा बता दिया, आपने समस्या रख दी, आपने उम्मीद जाहिर कर दी, आपने आशा बता दी कि भाई लोग इस काम में आगे आए और सबका हमारा मदद करें। तो किस प्रकार की मदद आप लोगों से चाहते हैं? तो कैलाश सत्यार्थी जी बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, everyone must acknowledge and feel that child slavery still exists in the world. Everyone, हर व्यक्ति को must acknowledge, यह बात मान लेनी चाहिए, and feel, और इस बात को महसूस करना चाहिए, किस बात को? कि that child slavery, जो बाल मजदूरी है, स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, वह इस दुनिया में आज भी मौजूद है। हम बोलते हैं ना कि हमने इतने नियम बता दिए, हमने बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए, कॉलेज खोल दिए, हम बच्चों के लिए मिड डे मील बना दिए, अब कोई बच्चा वंचित नहीं है, कोई बच्चा उपेक्षित नहीं है।
ऐसा कुछ नहीं है। सरकारों के इतने प्रयास के बावजूद भी दुनिया के हर व्यक्ति को यह बात माननी होगी और इसे महसूस करना होगा कि चाइल्ड स्लेवरी, जो बाल मजदूरी है, वह आज भी इस दुनिया में मौजूद है, स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में आज भी मौजूद है। और बहुत बड़ी बात बोलते हैं उसके आगे में, वो इन इट्स अग्लीस्ट फेस एंड फॉर्म, और पहले से भी ज्यादा विकृत रूप और सूरत में आपको यह देखने को मिलती है। मतलब पहले तो चाइल्ड स्लेवरी जैसा भी रहा होगा, अब तो वो और अगली हो गई है, और बेकार और बेहुदा और विकृत हो चुकी है। और उसका तरीका जो है वह भी अब बद से बदतर हो चुका है। इनिस्ट अग्लिएस्ट फॉर्म, अग्लिएस्ट बोला मतलब सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है। ध्यान दे रहे हो? कौन है ये पंचायती करत है? इन इट्स अग्लिएस्ट फॉर्म, अग्लिएस्ट के साथ में ईएसटी मतलब सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया। देखा आपने? हेलो? तो अग्लिएस्ट का अगली, अग्लियर, अग्लिएस्ट मतलब, अग्लिएस्ट मतलब सुपरलेटिव मतलब सबसे ज्यादा खराब स्थिति, बदसूरत, एकदम बदसूरत। केवल बदसूरत नहीं, एकदम बदसूरत मतलब सुपरलेटिव है, उससे ज्यादा हो भी नहीं सकता। गुड, बेटर, बेस्ट मतलब बेस्ट मतलब सुपरलेटिव सबसे अच्छा, सबसे अच्छा। और ये अच्छा मतलब सबसे बुरी स्थिति में है, अपने खराब है, सबसे खराब स्थिति में है। मतलब इसकी सूरत और उसके तरीके दोनों मौजूदा पहले की स्थिति से भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। एंड दिस इज एन एविल। अब वो बहुत बड़ी बात बोलते हैं, एक एविल बन चुका है हमारे लिए, एक बीमारी बन चुका है, ये भूत बन चुका है, राक्षस बन चुका है हमारे लिए, विच इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और जो कि मानवता के प्रति एक अपराध है। क्या बोलना चाहते हैं कि जो चाइल्ड स्लेवरी है, जो बाल मजदूरी है, वो वास्तव में एक एविल के रूप में हमारे सामने खड़ा हुआ है, एक बहुत बड़े राक्षस के रूप में हमारे सामने आके खड़ा हो चुका है। और जो कि क्या बन चुका है, जो कि क्या है, विच इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये मानवता के प्रति एक क्राइम है, एक अपराध है। विच इज इंटॉलरेबल, जो कि क्या है, बिल्कुल ही असहनीय है, जिसे सहा नहीं जा सकता। इंटॉलरेबल, जिसे सहा नहीं जा सकता। विच इज अनएक्सेप्टेबल, जिसे बिल्कुल भी माना नहीं जा सकता। क्या स्वीकार नहीं किया जाता, स्वीकार नहीं किया जा सकता। तुम स्वीकार करो क्या? बेटा गड्ढा खोद में घर में आके। नहीं सर, इसके बाद अनएक्सेप्टेबल बिल्कुल ही अस्वीकारनीय है। इंटॉलरेबल बिल्कुल ही बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। एंड विच मस्ट गो, और जिसे जाना ही पड़ेगा। मतलब इसे हमें अपने बीच से बाहर निकालकर फेंकना ही पड़ेगा। दैट सेंस ऑफ रिकॉग्निशन मस्ट बी डेवलप्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, और यही जो हमारे अंदर की जो भावना है, सेंस ऑफ रिकॉग्निशन, इस प्रकार से हमें अपने अंदर भावना पैदा करना है। मस्ट बी डेवलप्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमें इसी प्रकार की भावना को अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। किस प्रकार की भावना को? कि चाइल्ड स्लेवरी को हम इंटॉलरेट करेंगे, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। विच इज अनएक्सेप्टेबल, हम उसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे, वो अस्वीकारनीय होगा। और दिस मस्ट बी गो, और इसे हमारे समाज से बाहर जाना ही होगा। ये भावना सबसे पहले हमें अपने अंदर पैदा करनी होगी। एंड सेकेंडली, और दूसरे तरफ जाके हम, पहला तो हमको ये काम करना है, फिर देयर इज अ नीड ऑफ हायर अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल विल, और इस चीज के लिए हमको बहुत ही बड़ी मात्रा में हायर अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल विल, राजनैतिक इच्छा शक्ति। पॉलिटिकल विल का मतलब होता है राजनैतिक इच्छा शक्ति। अब तुम्हारे लिए, तुम्हारे स्तर में ये शब्द
वास्तव में बहुत बड़ा है। राजनीतिक इच्छा शक्ति का मतलब होता है, तुम देख रहे होगे आज हम 2 महीने से लॉकडाउन में है ना। अब इसके लिए यस सर। आप चलो कर देते हैं वाली स्थिति में ये काम नहीं हो पाता भाई। ये काम जिसने किया यस सर। उसके पास बहुत बड़ी, क्योंकि इससे हो सकता है उसकी राजनीति ही समाप्त हो जाए भाई। लाखों लोगों के रोजगार चले गए, आज आर्थिक मंदी आ रही है, लेकिन उससे बड़ा राक्षस हमारे सामने खड़ा है कि हम ही नहीं रहेंगे तो ये काहे का व्यापार और काहे की मजदूरी। तब इन दो चीजों के बीच फैसला लेना पड़ रहा है, और इसके लिए आपको बहुत बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। मतलब राजनीतिक इच्छा शक्ति यहाँ पे कहा जाए कि ये काम मैं करूंगा और इससे मुझे राजनीतिक रूप से कोई असर पड़ेगा तो उसे मैं किस प्रकार से बर्दाश्त करूंगा। तो हो सकता है कि आप चाइल्ड स्लेवरी रोकने जा रहे हो, विधायक हो, और आप चुनाव ही हार जाओ, तो ये रिस्क लेना ही पड़ेगा आपको, तभी आप इस बीमारी से निजात पा पाओगे। तो बहुत बड़ी हायर अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल विल की आवश्यकता है, मतलब राजनीतिक स्तर में भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा। देयर इज ए नीड ऑफ हायर अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट इंगेजमेंट। अब चूंकि इस बीमारी को हटाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होगी? पैसे की होगी भाई। ठीक है, आप उन बच्चों को मजदूरी से हटा दिए, तो भैया मजदूरी से हटा दोगे तो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन मजदूरी कर रहे खा रहे, तब वो खाएंगे क्या भैया? खाली पढ़ लिख लेने से तो उनका काम नहीं चलेगा। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका घर उनके Yes, पैसे sir. चल रहा है, यस कमा सर। रहे हैं तो घर वाले खा रहे हैं। उनको पैसे की जरूरत होगी। तो इस चीज के लिए बहुत बड़ी मात्रा में आपको पैसे की भी जरूरत पड़ेगी भाई। चारों तरफ से आपको मदद करनी Right, पड़ेगी। sir. ठीक है, उस बच्चे से मजदूरी भी रोकवाया, फिर उसके ड्यू अमाउंट भी उसको दिया, फिर उसको पढ़ाने में Yes, sir. खर्चा करो, उसको खिलाने में खर्चा करो, तब हाँ। जाके तो वो तैयार होगा। तो इन सब चीजों जी, की सर। बहुत बड़ी मात्रा में पैसा भी लगेगी, और पैसा कहाँ से आएंगे? और पैसों के लिए हमको कॉर्पोरेट इंगेजमेंट, यस सर। मतलब जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं, बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े व्यापारी वर्ग होते हैं, जो धनाढ्य व्यक्ति होते हैं, उनसे हमको बड़ी मात्रा में राशि की आवश्यकता पड़ेगी। तो उनका भी इन्वॉल्वमेंट, उनका भी जुड़ना जरूरी है। एंड द एंगेजमेंट ऑफ पब्लिक टुवर्ड्स इट, और सबसे आखिरी में सारे लोगों का, जो जनता है, उनका भी भागीदारी इसमें जरूरत पड़ेगा। सो एवरीबॉडी हैज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव एंड प्रोटेक्ट द चाइल्ड ऑन दिस प्लेनेट। तो अंततः क्या कह रहे हैं? तो एवरीबॉडी हैज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी। हर व्यक्ति की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए टू सेव एंड प्रोटेक्ट, कि हम बच्चों को बचाएं और उन्हें सुरक्षित भी करें। द चिल्ड्रन ऑन दिस प्लेनेट इज, और ये किसी देश की बात नहीं कर रहे हैं, किसी विशेष क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं। इस पूरे पृथ्वी में, इस ग्रह में जितने भी बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को हमें उन्हें बचाना भी है और उन्हें सुरक्षित भी रखना है। और इसके लिए हम सभी को बराबरी से अपना योगदान देना पड़ेगा। ये बात किस प्रश्न के उत्तर में दे रहे हैं मिस्टर कैलाश सत्यार्थी? हाउ कैन पीपल अराउंड द वर्ल्ड हेल्प यू विथ योर मिशन? कैसे दुनिया के लोग आपको इस मिशन से मदद कर सकते हैं? तो पहला क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तुमको अपने अंदर एक भावना पैदा करनी पड़ेगी कि दिस इज इनटॉलरेबल एंड दिस इज अनएक्सेप्टेबल एंड दिस मस्ट बी गो, और इसे जाना ही, इसको हमको बाहर निकालना ही है। दूसरा, हमको क्या करना है? बहुत बड़ी मात्रा में पॉलिटिकल विल और कॉर्पोरेट इंगेजमेंट को इन्वॉल्व करना है। राजनीतिक इच्छा शक्ति पैदा करवानी है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स को शामिल करना है, और सबसे आखिरी में सभी लोगों को बराबरी से इसके प्रति अपना योगदान देना है। जी। एडम स्मिथ फिर कहते हैं थैंक यू, धन्यवाद। एंड आई सपोज देयर इज इंड चाइल्ड स्लेवरी वीक कमिंग अप इन नवंबर, सो एवरीबॉडी कैन गेट, और कैन गेट के बाद 3 डॉट है, मतलब वो कुछ बोलना चाहते थे लेकिन बीच में ही बात को काट दी गई। एडम स्मिथ, और बोलना चाहते एंड आई सपोज, और मुझे लगता है, देयर इज इंड
चाइल्ड स्लेवरी वीक, एक इन चाइल्ड स्लेवरी वीक बनाया जा रहा है, मतलब बाल मजदूरी खत्म करने का एक सप्ताह करके योजना की जो बनाई जा रही है, वो कमिंग अप, वो आने वाली है नवंबर में। सो एवरीबडी, तो सभी लोगों को ऐसा वो बोलना चाहते थे, लेकिन कैलाश सत्यार्थी जी ने बीच में बात को काटा और क्या बोले, ऑफ कोर्स, सही बात है, यस, हाँ, वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज इन चाइल्ड स्लेवरी वीक। हाँ हाँ, हम इन चाइल्ड स्लेवरी वीक बनाने जा रहे हैं, जो कि 19 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक चलेगा। एंड दैट वुड एनुअल इवेंट, और ये क्या होगा, इसे हम एनुअल इवेंट, सालाना जलसे के रूप में मनाएंगे और हर साल इस चाइल्ड स्लेवरी वीक का आयोजन करेंगे, विच वी वुड बी ऑर्गेनाइज एवरी ईयर, और जिसे हम सारे मतलब प्रत्येक वर्ष मनाने का प्रयास भी करेंगे, ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड स्लेवरी, और डिफरेंट एस्पेक्ट्स, अलग अलग प्रकार के जो बाल मजदूरी है उनको मुद्दा बना के, खदान में मजदूरी करने वाले, खेतों में मजदूरी करने वाले, भीख मांगने वाले, मतलब अलग अलग एस्पेक्ट्स है, अलग अलग पहलू है। बाल मजदूरी कोई एक पहलू नहीं है, अलग अलग पहलू है। हम साल दर साल अलग अलग पहलुओं पर इन चाइल्ड स्लेवरी वीक का आयोजन करेंगे। Yes. And this year we are demanding to the information community that the abolition of child slavery must be incorporated. और इस साल हमने क्या किया है, वी आर डिमांडिंग टू द इंफॉर्मेशन कम्युनिटी, हम जो सूचना, जो क्षेत्र है, सूचना से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे हम ये मांग कर रहे हैं दैट कि द एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड स्लेवरी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द पोस्ट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जो चाइल्ड स्लेवरी है उसे हम किसके साथ इनकॉर्पोरेट मिला दें, इनटू द पोस्ट मिलेनियम डेवलपमेंट, सहस्त्राब्दी से जो हम इस पे चले आ रहे हैं, उस पोस्ट मिलेनियम डेवलपमेंट, उस विकास क्षेत्र में, उस विकास क्षेत्र के लक्ष्य में, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और एक निरंतर विकास के क्रम को लक्ष्य बनाते हुए हम इन दोनों को जोड़कर, ये थोड़ा सा आपके लिए मतलब समझने के लिए कठिन हो रहा होगा, वो ये कहना चाहते हैं, हम डिमांड कर रहे हैं कि इनसे इंफॉर्मेशन कम्युनिटी से, जो सूचना क्षेत्र, सूचना क्रांति के जो क्षेत्र होता है, उससे हम ये मांग कर रहे हैं दैट द एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड स्लेवरी, चाइल्ड स्लेवरी के समापन के लिए मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द पोस्ट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। हम इसको किसके इनकॉर्पोरेट, इनको किसके साथ मिला दे, पोस्ट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। जो अभी तक के हम मतलब लाखों हजारों वर्षों से जो हम अपना जो लक्ष्य बना के रखे हुए हैं विकास के लिए बच्चों के, उनके साथ हम इसको मिला दें। So that would be the emphasis of this year in child slavery week, और यही हमारे इस साल के इन चाइल्ड स्लेवरी वीक का क्या होगा, इम्फेसिस, हम इसी पर जोर डालेंगे कि भी आज तक के हमने बच्चों के लिए जो भी काम किया है विकास के लिए, उनको अपने आने वाले नए पहलुओं के साथ जोड़कर एक नए विकास के लक्ष्य को रखने का हम जोर रखेंगे इस साल के अपने जो इन चाइल्ड स्लेवरी वीक का जो हम आयोजन करेंगे उस चीज में। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर स्पीकिंग टू अस। अब एडम स्मिथ बोलते हैं, सचमुच में मैं आपका बहुत आभारी हूं फॉर स्पीकिंग टू अस, हमसे बात करने के लिए। एंड अगेन आवर कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द अवार्ड ऑफ द नोबेल प्राइज, और मैं फिर से आपको मतलब बधाई देता हूं किस चीज के लिए, जो आपने ये नोबेल प्राइज प्राप्त किया है। कैलाश सत्यार्थी बोलते थैंक यू वंस अगेन, मैं आपको भी एक बार फिर धन्यवाद देता हूं ऑन बिहाफ ऑफ माय ऑल ऑर्गेनाइजेशन whom I work with, मैं अपने उस पूरी संस्था की तरफ से जिनके लिए मैं काम करता हूं, ऑल एक्टिविस्ट, सारे कार्यकर्ताओं की तरफ से, एंड माय फेलो इंडियंस, और मेरे जितने भी भारतीय भाई हैं उनकी तरफ से भी मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बात का समापन होता है, एडम स्मिथ बोलते हैं थैंक यू, और कैलाश सत्यार्थी बोलते हैं बाय बाय। ठीक, अब इसको आप लोग एक बार और पढ़िए, और उसके बाद मुझसे कल के सेशन में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? यस सर। ओके सर, हाँ ठीक, बाय बाय। नोबेल पुरस्कार कितना बड़ा है इसका?
Oh,